اگر اسلام صرف غریبوں کا مذہب ہوتا تو نظام زکوٰۃ کیوں ہوتا؟ نظام زکوٰۃ تو ہے اس لیے، اور نظام صدقہ کیوں ہوتا؟ غلاموں کو آزاد کرنے کا نظام کیوں ہوتا؟ آپ مجھے بتائیں، کیا غریب غلاموں کو آزاد کرے گا؟ کیا زکوٰۃ غریب دے گا؟ کیا صدقہ غریب دے گا؟ آپ مجھے بتائیں، کیا مسجدیں غریب بنائیں گے؟ کیا مدرسے غریب چلائیں گے؟ آپ مجھے بتائیں تو صحیح۔ اللہ اکبر، غریب تو دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ، میری فکر سے کوئی متفق ہو یا نہ ہو، آپ اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن میں بڑی ذمہ داری سے ان مقدس علماء کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، رسول اعظم سے لے کر غوث اعظم تک، امام اعظم تک، ہمارے یہاں کوئی غریب اور مفلس نہیں ہے، اور نہ غریبی اور مفلسی کا کوئی تصور ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ، ہاں چند لوگوں کو غریب ضرور رکھا، وہ چند لوگوں کی اصلاح کے لیے رکھا، چند لوگوں کی تسلی کے لیے رکھا۔ اللہ اکبر، اس لیے یاد رکھنا، زکوٰۃ کا تصور ہمارے یہاں ہے کسی اور قوم میں زکوٰۃ کا تصور؟ اللہ اکبر، کہ سال میں ایک مرتبہ 2.5% نکالو، فطرے کا تصور ہمارے یہاں ہے۔ اللہ اکبر، غلاموں کو آزاد کرنے کا تصور ہمارے یہاں ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ، اس لیے مالدار بنو، محنت کرو اور کوشش کرو، اور جہاں تک اللہ کے رسول کی بات ہے، میں بار بار لوگوں کو یاد دہانی کرا رہا ہوں کہ اگر لوگوں کے کندھوں سے کندھا ملا کے کھڑے ہونا ہے، بازو سے بازو ملا کے کھڑے ہونا ہے، اور اسلام کو اور مسلمانوں کو ذلت سے بچانا ہے، تو اتنا کماؤ کہ جس قیمت کا لباس لوگ گھر سے پہن کے نکلتے ہیں، اس سے قیمتی تم پہن کر کے نکلو، تاکہ تمہیں کوئی حقارت کی نظر سے نہ دیکھ سکے۔ حضور علیہ السلام نے مکے میں پیون کا لباس پہنا، لیکن جب مدینہ منورہ میں بڑے بڑے مغرور سردار ملنے کے لیے آتے تو حضور ان سے زیادہ قیمتی جبے پہن کر بیٹھا کرتے تھے۔ وہ جو تحفے لے کر آتے، اس سے قیمتی تحفے لے کے بیٹھا کرتے تھے۔ سرداروں کے پاس تو کپڑے تھے، مگر یہاں لباس بھی تھا، حسن بھی تھا، روحانیت بھی تھی۔ آنے والا آتا تو متاثر ہو کے جاتا اور اپنا دل قربان کر کے جاتا۔ اس لیے یاد رکھنا، حالات کے تحت بدلنا ہوگا، لیکن کب تم مالدار بنو گے؟ 3 بجے تک انٹرنیٹ پہ زنا کی فلمیں دیکھو گے اور دوپہر میں 12 بجے تک سو کے اٹھو گے تو کیا ترقی کرو گے؟ اسکول میں جا کے لڑکیوں کو پٹاؤ گے تو کیا ڈگریاں حاصل کرو؟ یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے۔ او ظالموں، جیسے بلی کی نیت چھچڑے میں ہے، ویسے تم نے اپنا کردار بنا لیا۔ جملے تلخ لگے تو معاف کرنا، ایک دور وہ تھا جب کوئی انسان اپنی بیٹی کی حفاظت چاہتا تو مسلمان کے گھر میں رکھ کر کے جاتا، اپنے رشتہ داروں کے گھر میں نہیں، مسلمانوں کے گھر میں، کہ یہ مسلمان ہے، یہ سب کچھ کر سکتا ہے، کسی کی بیٹی پر کبھی پاپ کی نظر نہیں اٹھا سکتا۔ یہ اپنا کردار تھا، یہ اپنا کہاں گیا وہ کردار؟ کہاں گیا وہ؟ تو قصہ پاری نہ ہو کر کے رہ گیا۔ تو میری گزارش ہے، رات کو جلدی سویا کرو، صبح کو جلدی اٹھا کرو۔ لوگوں کی صبح سورج نکلنے کے بعد ہوتی ہے، ہماری صبح سورج نکلنے سے پہلے ہوتی ہے۔ سورج نکلنے سے بہت پہلے اپنی صبح ہوتی ہے۔ جب اپنی دکان سورج نکلنے سے پہلے کھلے گی تو جو سورج نکلنے کے بعد آئے گا تو بولو ترقی کس کو زیادہ ملے گی؟ پھر اس کے بعد ہر قوم کوئی نہ کوئی چھٹی کا دن مناتی ہے، کوئی سیٹرڈے مناتی ہے، کوئی سنڈے مناتی ہے۔ ہمارے یہاں کوئی دن چھٹی کا نہیں، ہمارے یہاں کوئی دن چھٹی کا نہیں، کوئی دن چھٹی کا نہیں ہے۔ ہمارے لیے جو سب سے قیمتی دن ہے وہ جمعہ ہے، عید المومنین، اس میں بھی چھٹی نہیں۔ کیا کہا؟ اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع۔ جب جمعہ کی اذان ہو تو کاروبار بند کر دو۔ کاروبار وہی بند کرے گا جس نے کھولا ہے، مطلب جمعہ کو بھی کھول کے رکھو، جمعہ کو بھی۔ جو 6 دن کمائے گا اس کی ترقی، اور جو 7 دن کمائے گا اس کی ترقی۔ کون زیادہ ترقی کرے گا؟ یہ جو دیندار اور دنیا دار کی خود ساختہ لکیریں تم نے بنائی ہے، یہ کوئی دنیا دار اور دینداری کی لکیریں کام نہیں آ سکتی۔
अगर कोई बंदा फराइज वाजिबात की पाबंदी के साथ दुकान पे हलाल कमा रहा है तो वो दुनियादार नहीं है, इस्लाम की नजर में वो भी दीनदार है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान वो भी अल्लाह। दीनदार है। इसलिए कि ऐसा हुआ है, एक साहब फजर पढ़ के सीधा मार्केट जाने लगे तो किसी बुजुर्ग ने कहा, या रसूल अल्लाह, कितना अच्छा होता इसने जाने में जल्दी कर दी। मेरे करीम आका ने फरमाया, अगर ये हलाल के लिए जा रहा है, अपने बच्चों की मोहताजी से, अपने बच्चों को मोहताजी से बचाने के लिए जा रहा है, तो इसका मार्केट में जाना भी इबादत है। जो हलाल कमाते कमाते मेहनत के पसीने में शराबार होता है, हर पसीने का कतरा गुनाह का आखिरी हिस्सा लेकर के टपका करता है, और जब वो अपने घर थक कर आता है तो गुनाह से ऐसे पाक हो जाता है जैसे वो अभी अपनी माँ के पेट से पैदा हो। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। माल कमाओ, लेकिन कैसे? फिरौन की तरह नहीं। माल कमाओ नमरूद की तरह नहीं। माल कमाओ बुख्त नस्र की तरह नहीं। माल कमाओ शद्दाद की तरह नहीं। बेशक। माल कमाओ सिद्दीक अकबर की तरह। माल कमाओ उस्मान गनी की तरह। माल कमाओ इमाम हुसैन की तरह। माल कमाओ इमाम हसन की तरह। करबला 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 सुनते हो, पढ़ते हो, अकल नहीं आई? आपके हल्द्वानी में बड़े से बड़ा कितना भी करोड़पति आदमी हो, अगर उसके दरवाजे पे कोई भीख मांगने आए, ज्यादा से ज्यादा कितना देगा? 10 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, और उस पर भी सीना फुलाएगा, क्या मेरे कादरी ने देखा कि नहीं देखा, मुफ्ती साहब ने देखा कि नहीं देखा, अल्लामा जाहिद ने देखा कि नहीं? यही है ना। पता है इमाम हुसैन और इमाम हसन के दरवाजे पे लोग आते थे भीख मांगने। भीख मांगने, दोस्त लोग नहीं, भिखारी लोग भीख मांगने। 50-50 हजार दे के कहते थे और साथ में माफी भी मांगते थे। आज बहुत कम है इसीलिए इतना दे दिया, कभी ज्यादा रहेगा तो फिर आकर के लेके जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह। ये गरीब लोग, ये गरीब लोग हैं जो 50-50 हजार भीख में दे दे, ये गरीब लोग हैं। तो आपके और हमारे इमाम हुसैन भी गरीब नहीं, हमारे और आपके इमाम हसन भी गरीब नहीं, हमारे आपके इमाम आजम भी गरीब नहीं, हमारे आपके गौसी आजम भी गरीब नहीं, हमारे आपके रसूल आजम भी गरीब नहीं, बल्कि अल्लाह अकबर, हम उन्हें गरीब किस मुंह से कहें? जाहिरी में भी उनकी दौलत लाखों में थी। ये और बात थी, सुबह आती थी, शाम को तकसीम करके पेट पे पत्थर बांध लेते थे, क्योंकि वो गरीबों के भी रसूल थे और अमीरों के भी रसूल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए अपने वक्त का सही इस्तेमाल करो और मालदारी के चक्कर में दीनदारी मत भूल जाना। इसलिए कि मालदारी के साथ मालदारी के साथ अगर दीनदारी भूल जाओगे तो फिर फिरौन बन जाओ, जी जी, नमरूद बन जाओ, बुख्त नस्र बन जाओगे। मालदारी औकात मत भूलना। कितना भी अल्लाह नवाज दे, क्या समझना मैं बंदा ही। बेशक। और देने वाले को हमेशा याद रखना। एक बात याद रखना, जो देना जानता है वो छीनना भी जानता है। बेशक। हम लोगों से ज्यादा इंटरनेट से आपका ताल्लुक है। लीबिया के शहजादे की तारीख तुम्हें पता है? नहीं पता है तो जाके चेक करना। सऊदी के बादशाह से उसके दोस्ताना ताल्लुकात, मिस्र के शाहों से उसके दोस्ताना ताल्लुकात, बरतानिया के सुदूर से उसके दोस्ताना ताल्लुकात। उसका हाल ये था, वो इत्र खरीदता नहीं था। लीबिया का जो शहजादा था वो इत्र खरीदता नहीं था। चंद कंपनियां मखसूस थी जो सिर्फ उसी के लिए इत्र बनाती थी, सिर्फ उसी के। हुजूर मुहद्दिस आज़म किचौचवी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, हर जवाले राह कमालो, हर जवाले राह कमाल, हर कमाले राह जवालो, हर जवाले राह कमाल। हर उरूज को जवाल है, हर उरूज को जवाल है, और हर जवाल को उरूज है। लेकिन ये भी याद रखना, उरूज को जवाल है, खुलूस को कभी जवाल नहीं। बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उरूज वाले जवाल पे पहुंचते हैं, खुलूस वाले यानी जो अल्लाह का बन के रहते हैं उनको कभी जवाल नहीं आता। फिर वो जमीन में भी चले जाते हैं तो उनको वरफाना लका जिक्रक का सदका मिलता है, वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला का सदका मिलता है। देखा गरीब नवाज को, 900 साल होने को करीब आ रहे हैं, लेकिन हर दिन मेरे ख्वाजा की तरक्की का दिन है। कल जितने लोग डंके बजाते थे उससे ज्यादा, गौसे पाक के जितने डंके कल बजते थे उससे ज्यादा आज है, वारिसे पाक के डंके कल जितने बजते थे उससे ज्यादा आज है, इमाम अहले सुन्नत के डंके कल
जितने बजते थे उससे ज्यादा आज है। तारिकुस सल्तनत मखदूम सिमना अलैहि रमा के डंके जितने कल बजते थे उससे ज्यादा आज है। बेशक। सरकार साबिर पाक के डंके कल। किसने सोचा था कि जंगल में एक मुरीद करने वाले के नाम के भी चर्चे होंगे। अल्लाह अकबर, जिसकी कब्र पर 12 साल तक किसी को आने की इजाजत भी ना होगी, हाय हाय। वहां भी मेले लगेंगे। अल्लाह अल्लाह, जिसने एक ही मुरीद करके कह दिया कि तू भी चला जा। सुभान। गौर वाह, तो वाह। फरमाए, एक ही कहने, मुरीद वाह, कह वाह, करके वाह, कहा कि तू भी चला जा, और जब तक मैं ना जाऊं तूने नहीं आना। हाय तवज्जो हाय हाय। फरमाए, अल्लाह अल्लाह क्या अल्लाह। अंदाज है। तू भी चला जा, जब तक मैं ना जाऊं तू नहीं आना। और बता दिया कि जो उसके मुखलिसीन होते हैं उनको डंके के लिए बंदों की जरूरत नहीं होती, वो तो यार मना करके सुभान अल्लाह सुभान दुनिया में अल्लाह। इज्जतें हासिल किया करते हैं। बेशक तो बेशक। मैं बात समेट रहा था, लेकिन कान में उन्वानात की बरसात होती जा रही है। तो मैं दो बातें अर्ज कर दूं, सुनना चाहे तो अर्ज कर दूं, मुझे कहा जी जाए। इरशाद। हाँ, लेकिन मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है कि अगर आप इस तरह फरमाइश करते रहेंगे तो मैं शुक्र के तौर पे कह रहा हूं कि मैं कभी बोलता नहीं, मैंने आज तक बोला नहीं, हमेशा मैं बुलवाया गया हूं अल्हम्दुलिल्लाह। और गजल पढ़ने वाले को दुश्वारी हो सकती है उन्वाने गजल की फरमाइश पर, इंशाल्लाह मुझे दुश्वारी है। मैं आपको कहता रहूंगा, सुभान अगर आप, लेकिन आप थक न जाएं इसका मुझे खौफ है, आप पक न जाएं इसका मुझे खौफ है। तो मैं अपनी बात को समेटने लगा हूं, लेकिन तवज्जो करना, मालदार बनो, बहुत मालदार तुम्हें बनना है। और मौजूदा हालात में टकराव की कोशिश मत करो किसी से भी। बेशक। आपके पड़ोस में कोई रहता हो, किसी से न टकराओ। मुस्लिम रहता है न टकराओ, अगर मुस्लिम नहीं है तो भी मत टकराओ, क्योंकि हमारे नबी ने हमें बेशक। पड़ोसियों का हक बताया। बेशक। और मुसलमान हो या मुसलमान नहीं हो, हमें पड़ोसी के हक को अदा, हाँ ये बेशक। जरूर है, अगर मुसलमान है तो डबल हक है उसका, एक पड़ोसी होने का, एक मुसलमान होने का। और अगर मुसलमान नहीं है तो कम से कम एक हक है, ईसाई हो, यहूदी हो, कोई हो, उसका हक है कि वो आपका पड़ोसी है। और कैसा पड़ोसी का हक, अगर बात आपने मुझे दिया है उन्वान, तो एक ही बात सुनाता हूं, पड़ोसी का हक क्या है और कितना खूबसूरत हक है। आज पूरी तवज्जो हमारी नमाजों पर, तस्बीह पर, मुसल्ले पर होना चाहिए। मैं तो नमाज का उन्वान, मेरी जिंदगी का उन्वान, जब तक नमाज पे बयान नहीं करता है मुझे ऐसा लगता है कि मुझे चैन नहीं मिलता। और मैं लोगों को कहता हूं नमाज नहीं पढ़ोगे तो कुछ नहीं मिलना। सबसे पहला सवाल क़यामत में नमाज का होना। आका अलैहिस्सलाम फरमाते जो नमाज छोड़ दे मैं उससे बेजार हूं, और हुजूर की बेजारी से हम अल्लाह की पनाह तलब करते हैं। लेकिन आज पूरी तवज्जो इसी पर है, बहन मर रही है, मरने दो, माँ बाप बर्बाद हो रहे हैं। आजकल तो हाल ये, अभी मैं अल्लामा साहब के यहाँ गया था, रुद्रपुर गया, अल्लामा जाहिद रज़ा साहब के, हुजूर मुफ्ती आज़म रहमतुल्लाह अलैह के मुरीदों में से, इनके वालिद आला हज़रत के मुरीदों में से, बताया खुशी हुई। यानी कि एक खान इमाम के दौर से इनका ताल्लुक बरेली शरीफ से, माशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको इमाम अहले सुन्नत के सच्चे मसलक पर और हमारी नस्लों को भी चलने की तौफीक अता। आमीन। अभी अल्लामा मुफ्ती साहब ने इशारा किया, नई नई फिक्र लेकर के लोग आ रहे हैं। मेरी बस इतनी गुजारिश है, कोई भी अच्छे से अच्छा मुक़र्रिर आए, पीर आए, शहजादा आए, आलिम आए, मुफ्ती आए, तो हमने करना क्या है? हमने करना ये, कोई गिनती पढ़ता है, गिनती पढ़ता है, एक के बाद तीन, तीन के बाद चार, चार के बाद छः, कोई गिनती पढ़ता है, तो आपका कोई उसको कबूल नहीं करता। मुफ्ती साहब पढ़ें, अल्लामा साहब पढ़ें, अमीनुल कादरी पढ़ें, हजरत पढ़ें, कोई कबूल करेगा? नहीं कबूल करेगा। क्यों? आप कहेंगे मौलवी साहब गिनती का उसूल है, तो एक के बाद तीन नहीं आता, दो आता है, उसूल है ना। तो आप गिनती के मामले में मौलाना की गिनती को भी उसूल पे परखते हैं, तो जैसे आप गिनतियों को उसूल पे परखते हैं, तो वैसे ही आपको हमारी बातों को भी उसूल पे परखना चाहिए। हमारी बातों के मुताबिक बुजुर्गों को ढालने की कोशिश न करें, बुजुर्गों की नजरियात और बातों के सामने चेक करें। आने वाले मुकर्रिर को, खतीब को, पीर को, अगर उसकी बोली बुजुर्गों की बोली से मिलती है, किसी नस्ल का हो, सुभान अल्लाह, किसी नस्ल का हो, किसी खित्ते का हो, किसी कबीले का हो, किसी सिलसिले का हो,
रंग उसका कैसा ही हो, टोपी उसकी कैसी हो, जुब्बा पहना हुआ ना हो और कुर्ते फटे हुए जैसा हो, अगर उसकी बोली बुजुर्गों की बोली से मिलती है, समझ जाना ये अपना है। और अगर बेशक। कितना भी खूबसूरत लिबास हो, कितना भी खूबसूरत अमामा हो, कितनी भी अच्छी तकरीर हो, अगर बुजुर्गों की बोली से उसकी बोली कुछ नहीं लगती है तो उसको आपने रिजेक्ट कर देना है। बेशक, बहुत खूब, वाह वाह इसका वाह वाह। आपको ख्याल रख, क्योंकि हमें हमारे इमाम ने उसूल दे दिया, तेरे गुलामों का, तेरे गुलामों का नक्शे कदम राय खुदा वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके। सुभान अल्लाह, और माशाअल्लाह। हमारे बुजुर्ग कौन है? शाह बरकतुल्लाह हमारे बुजुर्ग, बेशक, शाह आले रसूल हमारे बुजुर्ग, महाराज शाह अली हुसैन अशरफी मियां शेखुल मशाइख हमारे बुजुर्ग, बेशक, हुजूर सुभान। मुहद्दिस आजम के चौचवी हमारे बुजुर्ग, बेशक। शाह अब्दुल अजीज दहलवी हमारे बुजुर्ग, बेशक। शेख अब्दुल हक दहलवी हमारे बुजुर्ग, बेशक। शाह वलीउल्लाह हमारे बुजुर्ग, बेशक। ये हुजूर के वो सच्चे गुलाम हैं जिन्होंने हुजूर अलैहि सलाम के दीन की सच्ची तर्जुमानी। बेशक, बेशक। इसलिए आज किसी की भी बोली को इन बुजुर्गों की बोली पे परखने की कोशिश करें, बेशक। अल्लाह ताला हमें उसी पे कायम रखे। तो आमीन। हजरत के घर में गया था, एक खातून रोते हुए आई, दिल रोया, यकीन जाने पूरा रास्ता भर मैं उसके आंसुओं से मुतासिर रहा। वो खातून बूढ़ी थी, क्या लेकर आई थी? मेरी बहू ने मुझे घर से निकाल दिया। ये हालात। मुसलमानों बताओ, इस्लाम तो पड़ोसियों के साथ भी अच्छे सुलूक की बात करता है, हम अपने माँ बाप के साथ भी सुलूक करें। और एक बात याद रखना, जो अपने माँ बाप के साथ अच्छा सुलूक नहीं कर सकता वो दुनिया का कभी अच्छा इंसान नहीं हो सकता। बेशक, बेशक। वो नमाजी हो, रोजेदार हो, ये हो, कुछ भी हो, कुछ नहीं हो सकता वो। इसलिए आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते कि तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी जन्नत भी है और तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी जहन्नम भी है। बेशक। बहुत अच्छी बात मेरे बुजुर्ग ने कही थी कि लोग हम लोगों के हाथ चूमने के लिए दौड़ते हैं, तो हमारे हाथ चूमने के लिए दौड़ते हो, अपने माँ बाप के हाथ भी इतने ही शौक से चूमते हो? क्या बात है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। क्या कहने हैं? बताएं तो, वाह वाह वाह। तरजीहात कहाँ गई? कहाँ गई तरजीहात? और अगर माँ बाप के हाथ नहीं चूमते, कुछ लोगों को बुरा लगता है कि आप पीर की, वल्लाह मैं पीर की मुखालफत में नहीं कह रहा हूं, मैं माँ बाप की हिमायत में कह रहा हूं। हम खुद अपने मशाइख के हाथ भी चूमते, पैर भी चूमते, लेकिन आपसे कहता हूं, अगर माँ बाप के हाथ नहीं चूमते तो पीरों के हाथ चूमना तुम्हें फायदा नहीं दे सकता। वाह 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 वाह, सुभान। मस्जिद बनाने से ज्यादा, मदरसे बनाने से ज्यादा, सबसे ज्यादा अगर किसी पे खर्च करने पे सवाब मिलता है तो तुम्हारे माँ बाप हैं। इनसे ज्यादा खर्च करना, इनके ऊपर खर्च करने से ज्यादा सवाब पे नहीं। मेरे आका फरमाते हैं, अगर तुम अपनी उम्र को लंबी करना चाहते हो तो अपने माँ बाप के साथ और रिश्तेदारों के साथ उसने सुलूक करो। आका इरशाद फरमाते हैं, किसी बंदे की उम्र सिर्फ 3 दिन बचती है, सिर्फ तीन साल बचती है। हजरत इमाम फकी अब्दुल्लाह समरकंदी लिखते हैं, किसी बंदे की उम्र सिर्फ 3 साल बचती है, 3 साल, और अल्लाह 3 साल से उसकी उम्र को 30 साल तक बढ़ा देता है। तो सहाबे किराम ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, ये अचानक 3 साल की उम्र 30 साल कैसे बढ़ जाती है? तो आका फरमाते हैं, जब बंदा अपने रिश्तेदारों के साथ उसने सुलूक करता है तो उसकी बरकत से अल्लाह 3 साल को 30 साल में बढ़ा देता है। और फिर फरमाया, किसी की उम्र 30 साल रहती है, अचानक उसकी उम्र घटते घटते 3 दिन हो जाती है। सहाबे किराम ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, 30 साल की उम्र घटकर 3 दिन में कैसे आती है? फरमाया, अपने रिश्तेदारों के साथ बदसलूकी करता है तो अल्लाह उसकी उम्र को घटा देता है। जल्दी बाप के लिए दुआ करता है, आखिरी बात अर्ज करने चला था वो ये पड़ोसी के बारे में। पड़ोसी मतलब क्या? जो बाजू में रहता है वो नहीं, 40 घर दाएं से, 40 घर बाएं से, 40 आगे 40 पीछे,
ये सब पड़ोसी है अपने। बेशक बेशक बेशक। हमारी जमात के एक बहुत बड़े मुफक्किर बुजुर्ग ने बहुत प्यारी बात कही कि जब इतने पड़ोसी है तो इतने लोग पड़ोसी बन गए, 40 40 80 80 80 160 लोग पड़ोसी हो गए। तो इसमें तो पूरा मोहल्ला हो गया ना, 160 घर में पूरा मोहल्ला हो गया। तो अब हमारा पड़ोसी तो ये बन गए, लेकिन चूंकि ये हमारा मोहल्ला है तो बाजू का मोहल्ला हमारा पड़ोसी मोहल्ला हो गया। अब मोहल्ले से मोहल्ला मिला तो पूरा गांव हमारा हो गया, तो पड़ोस का गांव हमारा पड़ोसी हो गया। और जब गांव से गांव मिले तो पूरा मुल्क हमारा हो गया, तो पड़ोस का मुल्क हमारा पड़ोसी हो गया। इसका मतलब दुनिया का हर इंसान हमारा पड़ोसी। जी बेशक, सुभान अल्लाह। और हमें हुक्म है जब तक पड़ोसी को न खिलाओ तुमने सोना नहीं। आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं जो पेट भर के खा के सोए और उसका पड़ोसी भूखा हो, ये नहीं फरमाया कि मुसलमान हो, नहीं, मुतलकन पड़ोसी। देखें तो सही, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, दुनिया को नफरत की बोली बोलने दो, आप मोहब्बत की बोली बोलो। सुभान अल्लाह। नफरतें और मोहब्बतें जब लड़ती हैं तो नफरतें हार जाती हैं, मोहब्बतें जीत जाती हैं। सुभान अल्लाह सुभान जीत अल्लाह। हमेशा मोहब्बत की हुई है, इसलिए आओ मोहब्बत का पैगाम आम करें। और हमारे आका अलैहिस्सलाम ने मोहब्बतों से दिल जीते हैं, बेशक। हुजूर ने तलवारों से नहीं मोहब्बतों से दिल जीते। तो बहुत खूबसूरत सा एक वाकया मेरी निगाहों के सामने आ रहा है, वो पेश करके बात खत्म करूं, लेकिन इस उम्मीद पर कि आप अमल करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। तो खिलाओ, पड़ोसियों को खिलाओ, उनकी जरूरत का ख्याल करो। अब यह एक मसला, लोग कहते हैं हजरत हम तो चलो उसके साथ अच्छा सलूक कर रहे हैं, वो बदमाशी कर रहा है तो क्या करें। हमने कहा हमें हुक्म है वो जो भी करे आपको अच्छा सलूक करना। भाई जी, अच्छे बेशक। के मुकाबले में अच्छा किया तो आपने बदला दिया, लेकिन बुरे के मुकाबले में अच्छा किया तो अच्छा सलूक है ना। तो आइए पड़ोसी का बेशक। मामला हमारे हुजूर के यहाँ क्या था उसको सुन ले। एक मर्तबा हुजूर अलैहिस्सलाम ने सोचा, आका ने सोचा कि आज रात बड़ी फुर्सत है, मैं थोड़ा इस रिवायत को अपने अल्फाज के जामे में कुछ शरह के साथ बयान कर रहा हूं ताकि बच्चों को भी समझ में आ जाए, बहनों को भी समझ में आ जाए। आका अलैहिस्सलाम ने सोचा आज फुर्सत है, आज मसरूफियत बज़ाहिर जो आमतौर पे हुजूर अलैहिस्सलाम को रहती थी वो नहीं है। तो हुजूर ने सोचा आज रात मैंने बहुत लंबी नमाज पढ़ी। फर्ज नमाज पढ़ाते थे तो बहुत मुख्तसर पढ़ाते, और जब नफल पढ़ते थे तो बहुत लंबी पढ़ते थे, कभी कभी पैर सूज जाते थे खड़े खड़े, इतनी लंबी लंबी। आज मैंने लंबी न, आका सोच रहे मैंने लंबी नमाज पढ़ी, और लंबी नमाज की नीयत से हुजूर ने नमाज शुरू की। जैसी नमाज शुरू की, कान में पड़ोस से एक बच्चे के रोने की आवाज आई। गौर करें, किसकी नमाज है? जाने नमाज की नमाज, जाने इबादत की नमाज, अल्लाह के महबूब की नमाज, नमाज लाने वाले की नमाज। हाय हाय, जहां अरकान जिसकी अदाओं पर तरतीब पाते हैं तो नमाज बनते हैं, उस रसूल की नमाज है। इबादत नाम है तेरी गली में आने जाने, बेशक, सुभान अल्लाह। तेरी सीरत तेरी सूरत जमाने से निराली है, तेरी हर हर अदा प्यारे दलील बेमिसाली। हल्द्वानी वालों सुभान अल्लाह। फिर क्या हुआ, गिरद नवाज से आने वालों, मेरे आका के कान में बच्चे के रोने की आवाज आई। मेरे आका ने एक बच्चे के रोने की आवाज पर अपनी नमाज को मुख्तसर कर दी। अल्लाह के रसूल ने नमाज मुख्तसर की एक बच्चे के रोने की आवाज पर, और जब नमाज मुख्तसर कर ली तो हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम जहां से आवाज आ रही थी उस आवाज पर चलते चलते गए, तो दरवाजे पे रुके तो क्या देखा कि वो दरवाजा किसी मुसलमान का दरवाजा नहीं बल्कि एक यहूदी का दरवाजा, और वो भी यहूदी बिल्कुल कट्टरवादी इंसान जो हुजूर की मुखालफत में आगे आगे रहता। हुजूर की मुखालफत में वो उसकी बीवी आ गया। हुजूर अलैहिस्सलाम ने दरवाजे पे दस्तक दी, अंदर से आवाज आई, कौन? मेरे करीम आका ने फरमाया मैं मोहम्मद हूं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इतनी रात तुम्हें हमारे दरवाजे पे क्या काम? अंदर से औरत की आवाज है, क्या काम? मेरे करीम ने फरमाया तुम्हारा बच्चा रो रहा है ना। मेरे करीम आका ने फरमाया तुम्हारा बच्चा रो रहा है ना, इसलिए
तुम्हारे दरवाजे पर उसका रोना, उसके रोने की आवाज मुझे लाई है। सामने से जवाब क्या आता है बताए, बच्चा हमारा रोता है, तुम्हें इतनी तकलीफ क्यों है, तुम्हें क्यों तकलीफ। जवाब देखो कितना गंदा और बुरा जवाब, लेकिन रहमतुल लिल आलमीन की, रहमतुल लिल आलमीन पे कुर्बान जाएं। फरमाया मुझे देखा नहीं जाता किसी का रोना, और मेरे अल्लाह का हुक्म है कि मैं मखलूक के साथ अच्छा सलूक करूं। आका फरमाते हैं अल्लाह का, कि अल्लाह ने क्या फरमाया, अल खल्क़ु अयालुल्लाह, मखलूक अल्लाह का कुंबा है। और एक मकाम पे फरमाया इरहमु मन फिल अर्द व यरहमुकुम मन फिस समा, जमीन वालों पे तुम रहम करो, आसमानों का खालिक तुम पर रहम। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जब तक तुम बंदों की मदद करते रहो अल्लाह तुम्हारी मदद करता रहेगा। अल्लाह अकबर। फरमाया मुझे किसी का रोना देखा नहीं जाता। अभी तक तो नफरत की बोली बोल रही थी, लेकिन जब फरमाया मुझे किसी का रोना देखा नहीं जाता, दरवाजा खोल दिया। फरमाया क्या बात है, क्यों रो रहा है तुम्हारा बच्चा। तो कहा मेरे शौहर सफर में गए, आने में ताखीर हुई, घर में जितना छोड़ के गए थे सब खत्म हो